Hello guys, welcome back to the another video. So in this video we will solve the IPMAT Rohtak previous year questions. So let's see the first question. So they have mentioned that in this question, like if log 2, log 2x minus 1 and log 2x plus 3 are in AP, so then we need to find out the value of x. So as you all know that if 3 logarithm are in AP, basically means the numbers in that will be in GP. Basically if 3 numbers are in GP, basically means A by B will be equal to B by C. So basically means 2 comma 2x minus 1 and 2x plus 3 are in GP, right? So to solve that we can use this identity 2x minus 1 equal to 2x minus 1 divided by 2x प्लस 3. ऑल्सो आपको ये भी याद होगा लाइक बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. हम इसको दो तरीके से बोल देते हैं. सो दिस इज द बेसिक वन एंड दिस इज द आइडेंटिटी दैट यू आर नो ऑफ, राइट. सो इफ वी सॉल्व दिस विल गेट 4x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, राइट. So if we'll solve it, we'll get 4x square minus 8x and minus 5. So we need to solve this identity. 4 into 5 is 20. So हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें कि प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए. एंड वी कैन सी कि यार 10 into 2 will be 8 if we minus them. So 4x square minus 2x plus 2x minus 10x minus 5. We can use this and we can take 2x common, then it will be plus 1 minus 5 2x plus 1. So if we solve it, एक वैल्यू हमारी x की आएगी माइनस 1 बाई 2 एंड एक आएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. बेसिकली मीन्स x इज इक्वल टू 5 बाई 2. सो एक वैल्यू आएगी 5 बाई 2. And you know that logarithm cannot be in minus 1 by 2 format. So our answer will be the second one, that is 5 by 2, which is in option A. So, okay. So find out the HCF of 2 by 3, 4 by 6 and 8 by 7. To solve these type of questions, you need to know if you are solving or finding an HCF or LCM for a fraction part. So if you need to find out the HCF, so what you need to do for fraction, the HCF of numerator and the LCM of denominator, right? Okay, so if you need to find out the LCM, so you need to find out the LCM of numerator and the HCF of denominator. But in this case they have asked about the HCF. So we need to find out the HCF of 2, 4 and 8. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, देखो HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि सारे में है एंड सारे फैक्टर्स में है. देखो 2, 4, 8, तो इसमें कॉमन क्या है, लाइक 2 इज कॉमन इन ईच एंड केस, लाइक 2 into 2, 2 into 4. सो अगर HCF इज 2, ठीक है, सो वी कैन एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस, राइट. अब हमें क्या निकालना है, नीचे वाले का LCM. आपको पता है लेट्स से कि 2 और 3 है. देखो LCM कभी भी ना आपके बड़े वाले नंबर से छोटा नहीं होगा. उससे बड़ा तो हो ही सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता. लेट्स से इनका LCM क्या आएगा, 6, ठीक है. अगर हम 2 और 4 का LCM निकालते हैं तो LCM क्या आएगा, 4. 2 कभी नहीं आएगा, मतलब छोटा वाला कभी नहीं आता. तो बड़ा हमेशा होना चाहिए, लाइक जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा ना वो LCM हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा. सो 3, 6 एंड 27, अगर आपको LCM निकालना है यू कैन फाइंड इट आउट. अदरवाइज 3 और 6 तो हो ही नहीं सकता. द मैक्सिमम नंबर और द लोएस्ट नंबर LCM कैन बी इज 27. सो विच इज इन ऑप्शन A. वी कैन एलिमिनेट 2 by 3 एज वेल. ऑल्सो अगर आपको सोल्व भी करना है तो आप 3, 6 एंड 27 का LCM निकाल सकते हैं, दैट इज 27 अगेन. सो यू विल गेट 2 by 27 एज योर आंसर. Okay, so in this type we need to use the board mass, that is bracket of division, multiplication, addition and subtraction as the basic identity, right? So हमें हमेशा क्या करना होता है, राइट टू लेफ्ट सोल्व करना होता है. सो इफ वी डिवाइड इट विद दिस, सो बेसिकली हमें ये डिवाइड करना है इसको. सो बट according to the board mass we need to solve the bracket first. So if we solve it, it will be what, 40.
Yeah, and 40 again divided by 20 will get 2 as our answer. That is in option second. So this was the easiest question, I say. Okay, this is the simplification one. Okay, so इसमें है 25 raised to the power 2.7 and into 5 and divisible of 5. So देखो सारे 5 में है, right, and this is 25. so हम भी इसको कर लेते हैं 5 square into 2.7 again same, right. Okay, so ये again multiply हो जाएगा बाहर, that is 5.4 into 5 4.2 divisible of 5 5.4, right. this is the scenario. Okay, so अगर आप डिवाइड करें तो देखो ये दोनों डायरेक्टली कट जाएगा, विच इज आवर आंसर विल बी 5 4.2. Okay, so this is the boat and steam question. So let's solve this one. Okay, a boatman goes 2 kilometer against the current. Okay, so let's say हम बोट की स्पीड ले लेते हैं b एंड स्ट्रीम और करंट की लेट्स से वाटर की स्पीड ले लेते हैं w से. अब देखो दे आर गोइंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वाटर. सो अगर लेट्स से रिवर का फ्लो ऐसा है एंड यू आर गोइंग दिस, तो आप स्लो हो जाओगे. सो बेसिकली मीन आपकी स्पीड विल डिक्रीज, सो द रिलेटिव स्पीड विल बी b माइनस डब्ल्यू. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो लेट्स से अब बोट ट्रेवल 2 किलोमीटर against the speed, so the speed will be b minus w in 1 hour. Okay, so b minus w will be 2, right. Okay, and he goes 1 kilometer along the current. Basically means river का flow अगर ऐसा है, so you are going with the flow of river, so you will go fast. So basically means boat plus water speed will be added and you are going 1 kilometer. Okay, so in how much time you are taking 10 minutes. सो देखो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए. लेट्स से कि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर. सो देखो सारी चीज़ें किलोमीटर एंड आवर्स में है, बट दिस वन इज़ मिनट. ठीक है, तो आपको बेसिक यूनिट सेम होनी चाहिए. सो हमें इसको भी आवर में कन्वर्ट करना है. सो 10 मिनट बेसिकली मीन्स इन 60. सो बेसिकली 1/6 इज़ योर आवर्स. इफ़ वी चेंज इट इन आवर्स एंड दिस विल बी हियर. सो b प्लस w इज 6. नाउ देखो अब आपको पता है 2 इक्वेशन है आपके पास और आपको बोट और वाटर की निकालनी है. एक तरीका क्या है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो, यू विल गेट 2b एज 8 एंड b विल बी 4 एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ b हियर एंड यू विल गेट द स्पीड ऑफ वाटर एज 2, राइट. और एक छोटा तरीका भी होता है, ये वैसे ये भी छोटा है, बट अगर आपको 2 इक्वेशन हो, एक में हो b प्लस डब्ल्यू या फिर x प्लस वाई और सेकंड वन विल बी x माइनस वाई, तो उसका छोटा तरीका भी होता है. लेट्स से आपको b की वैल्यू निकालनी है पहले वाले की, बेसिकली पहले वाले की. सो आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाई 2. लाइक ऐड बोथ ऑफ देम विल बी 8 एंड डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 4 एज योर आंसर. एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर वन और द लास्ट वन, जस्ट चेक द डिफरेंस. Basically means subtract both of them and divide by 2. You will get your answer. So this is the speed of boat and this is the speed of water. What we need to find it here is how long will it take to travel 5 kilometer in stationary water. Basically speed नहीं होगी उसमें water की. So we need to find out the time, right. So we need to travel 5 kilometer in the stationary water. Basically speed of water is not there. So you will get the speed of boat is 4. We'll get 1/4. ठीक है. सो 1 hour समथिंग मिनट्स. बट इसमें बच्चा क्या कर सकता है, 1/4 25 ले लेता है कई बार, क्योंकि 1/4 हमने पढ़ा है आपका परसेंटेज में. तो 1/4 इज नॉट 25 बिकॉज 1/4 ऑफ वॉट, 1/4 ऑफ टाइम, लाइक इन 1 hour. सो यू विल गेट 1 hour 15 minute एज आवर आंसर. ऑल्सो अगर यहाँ पर 25 होता है ना, बहुत बच्चा 1/4 देख के 25 को आंसर कर देता है बिकॉज ऑफ द रेशियोज ऑफ परसेंटेज. लाइक 1/4 इज नथिंग बट 25%, राइट. बट हियर ही सेड दैट 1/4 ऑफ एन आवर, राइट. तो ये वाला मिस्टेक नहीं करना है. ओके, सो दिस इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. सो वर्क डन बाय P in 1 day is double than the Q in 1 day. Okay, and the work done by Q in 1 day, okay, work done by Q in 1 day is thrice than the work done by
R in 1 day. So this is the ratio. We need to balance the ratio. ठीक है, अब बैलेंस करने का देखो, ये कैपिटल एन मेथड बोलते हैं, इसको शॉर्टकट बोलते हैं. जस्ट मल्टीप्लाई लाइक दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस 3 एंड दिस इंटू दिस 1. अब आपका रेशियो बैलेंस हो गया. तो दिस इज द शॉर्टकट और द रिवर्स कैपिटल एन मेथड, राइट. सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ P, Q and R respectively. Now in the question they have mentioned that if P, Q and R work together to complete the work in 30 days. बेसिकली उनको काम करने में 30 डेज लग रहा है. सो 30 डेज, इफ दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क पर डे, यानी कि एक दिन में वो इतना इतना यूनिट काम करते हैं. बेसिकली मीन्स 10 यूनिट वो तीनों मिलके काम करते हैं. सो इन 30 डेज दे विल वर्क 300 यूनिट ऑफ द टोटल वर्क, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज इन हाउ मैनी डेज P alone can complete the work. Basically means P अकेला कितने दिन में काम कर देगा. So this is the total work and total work need to be done by P only. And what is the efficiency of P? It is 6 unit. So you will get 50 days as your answer, which is in option D, right? Okay, so partnership question, easy one. Okay, so Raj invested 76,000 rupees in a business. Okay, after few months Monty joined him and invested 57,000 rupees, right? So at the end of an year both of them share the profit in 2:1. So this is investment, then there will be some time कि इसने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, इसने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, then they will get the ratio of profit into 2:1. ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज योर प्रॉफिट, राइट. बट हियर क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट. सो वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम. सो टाइम विल बी प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट. सो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है. ओके, अब देखो इसको भी रेशियोज में कर लेते हैं हम. सो 19 3 जा एंड दिस विल बी 19 4. सो अगर हमें टाइम निकालना है, सो टाइम विल बी प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट. सो फॉर R it will be profit divided by investment. For M it will be profit divided by investment. So it is 1/2. If we balance the ratio here, it is 3:2, right? So 3:2 is the ratio of time, right? अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि वो दोनों ये जो आपका R है और जो राज है वो 1 साल काम करता है. सो बेसिकली मीन्स ये 12 महीने काम करता है. सो 3 इज इक्वल टू 12. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2, दैट इज 8. बट क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ मोंटी जॉइंड राज, मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन करा है. देखो आपके राज ने 12 महीने काम करा है, ठीक है, मोंटी ने 8 महीने काम करा है. सो बेसिकली मीन्स ये 4 महीने बाद ऐड हुआ होगा, राइट. सो इसमें 8 आंसर नहीं होगा. बहुत बच्चे 8 देख के 8 आंसर मार देंगे. उन्होंने पूछा कितने महीने बाद ज्वाइन करा है, राइट, वो है. इफ क्वेश्चन पूछता कि टोटल मोंटी ने कितना काम करा है, देन 8 विल बी आवर आंसर. बट दे हैव आस्क्ड कि हाउ मैनी मंथ्स मोंटी जॉइंड राज, ठीक है, तो गलती नहीं करना. Okay, so this is a slightly tougher question. So John's present age, okay, so John's present age is 1/4 of his father's age 2 years ago. So 2 साल पहले, right? So this is the first equation. Okay, John's father's age, तो fathers को F से लिख लेते हैं. Will be twice Raman age, okay, will be twice Raman age आफ्टर 10 ईयर्स. तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो दोनों में ऐड करना, कभी एक में आपका ऐड कर दो. सो इफ रमन्स एज इज रमन्स 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years ago, तो यानी कि रमन 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years ago. सो बेसिकली हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, रमन की वैल्यू मिल जाएगी 14, ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ J और द John's present age, right? So if we know the value of R, we can put here, that will be F plus 10 is 14 plus 10 24, 24 into 2 it is 48, and we'll get F as 48 minus 10, that is 38. So we got 38 as the father's age.
So now put the father's age here, that is 38 here. So we will get 1/4 of 38 minus 2, that is 36, 9 as our answer. So देखो इक्वेशन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी था, बट कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा नहीं है. कैलकुलेशन पार्ट में भी इसमें हो सकता है. अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, इसमें एक सर्कल है अंदर, राइट, हुज साइड इज 24. सो द साइड ऑफ equilateral triangle is 24 and it is touching the whole side, so we need to find out the remaining portion. तो हमें ये वाला एरिया जो है ना, ये जो 3 बचा हुआ है ये निकालना. सो अगर बेसिकली मैं बताऊँ आपको, अगर ट्राइंगल का एरिया पता है, माइनस आप सर्कल कर दोगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा. बेसिक कंसेप्ट पता है, प्लस हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कुछ माइनस कुछ गया एंड पाई विल बी सर्कल का एरिया और ये वाला विल बी द ट्राइंगल का एरिया, राइट. तो हमें इतना तो समझ आ गया. अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपको पता है, उसकी हाइट क्या होती है, √3/2a, वेयर a इज अवर साइड, एंड एरिया ऑफ क्या होता है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a², विच इज साइड. सो a² इज 24 × 24, 6 × 24 is 144. 144 √3 इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो ये ऑप्शन तो कट गया. अब नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस. अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकल गया हमारा, हमें माइनस क्या करना है, सर्कल का एरिया. तो सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा बचा हुआ एरिया आ जाएगा. सो हम देख सकते हैं या तो 48 पाई हो गया, 36 पाई होगा. अब देखो हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, √3/2a, ठीक है, √3/2a, फिर a इज 24, सो 12 √3 इज अवर हाइट, ठीक है. चलो एक और आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ. देखो जो रेडियस होता है ना आपका, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², वेयर पाई तो इन्होंने लिखा ही है, यूज़ नहीं करा है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ r², ठीक है. अब देखो जो ये हाइट होती है ना, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2:1. सो बेसिकली मीन्स रेडियस इज 1/3 ऑफ द हाइट, 1/3 ऑफ द हाइट. सो वील गेट रेडियस एज 1/3 of the height, and height is 12 √3. Oh, sorry, 1/3, yeah, it is 4 √3. So we'll get radius as 4 √3. So area of circle will be πr², basically √3 का whole square, that is 16 × 3, 48 pi. So answer will be this minus 48 pi, that is in option A. So ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बट यू कैन डू इट. ओके, सो 40. सो इसमें क्या बोला है, इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस एंड प्लस का साइन मीन्स, सॉरी डिवाइड का साइन मीन्स माइनस एंड प्लस का साइन मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस का साइन मीन्स डिवीजन. सो वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो 43 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, प्लस 561, राइट. प्लस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 500, माइनस का मल्टीप्लाई मतलब है डिवीज़न, एंड देन आपका डिवीज़न का मल्टीप्लाई है 10. अब देखो ये तो 5 हो गया, राइट. इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ इट विल बी 33 प्लस, इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 33 कैरी 5 5 25, दैट इज़ 28. सो 2805 प्लस 33 विल गेट 33 ऐड करना है हमें, 8382, दैट इज इन ऑप्शन डी. सो ये इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 minute you can solve it. Okay, let's solve this one. If 1/5 of a number 1/5 of a number is equal to, let's say 1/5 of a number, first number is equal to 5/8 of the second number, right? So we can solve it. 8f will be equal to 25 second number. So don't be confused in 5 and s. S is for second number. So if 35 is added to the first number, it becomes 4 times of the second number.
ओके राइट। तो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, कि बेसिकली हमें एस का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें एस का वैल्यू निकालना है तो एफ का वैल्यू पुट कर देते हैं, विल गेट एस का वैल्यू। सो एफ विल बी नथिंग बट 25 एस डिवाइड बाई 8। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 25 एस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या था 25 प्लस 35। सो वी नीड टू पुट आउट द वैल्यू ऑफ 25 एस बाई 8 प्लस 35 4s। उसको हम इधर ले जाएंगे। सो ये अगर हम इधर ले जाते हैं -35, तो s का वैल्यू विल बी 8/25, अंदर है 4s माइनस 35, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट। 25s 32s minus 35 into 8, 35 into 8, right, that is 40, 280, 280, right। अगर हम इसको माइनस करते दैट इज 7s, 7s इज इक्वल टू 280, विल गेट वैल्यू ऑफ s एज 40। 7 into 28, or 28 divided by 7 is 4, so we'll get 40 as our answer. So let's solve this one. This is the easiest one. So what will be the fraction value of this? 0.0056। अब देखो इसको आप हटा दो, अब आपको बेसिकली ये सोल्व करना है। सो इन द एग्जाम योर बेसिक स्ट्रैटेजी इज टू फर्स्ट फोकस ऑन द इजी क्वेश्चन। देखो जो लास्ट वाला था थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसको छोड़ के आप पहले ये कर सकते हो, बिकॉज आपको टफ क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन करना है, नंबर तो 4 ही मिलेंगे। सो इट्स बेटर इफ़ यू फोकस ऑन द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। दैट इज 28/5000, अगेन 14/2500, अगेन जाएगा ये 7/1250, तो 7/1250 which is in option C. So C will be our answer. Okay, so we need to find out the decimal of an hour in a second, right? So basically हमारा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 seconds, 60 seconds, right? And in 1 hour we have 60 minutes. So basically if we'll compare the value of seconds with respect to the decimals of hour, we'll get this. So we need to solve it right now कि कितना डेसिमल्स होगा। तो 1/3600 का वैल्यू हमें बताना है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। अब देखो सब में पॉइंट्स का कोई फ़र्क नहीं है, तो मुझे मतलब ही नहीं है मैं पॉइंट्स कितने भी लगा दूँ। लेट्स से इसको सोल्व करते हैं। सो 36 2 जा विल बी 72, सो 2 2 2 सब में 2 है, तो 72 विल गेट 28। तो अगर हम 36 इंटू 6 करते हैं विल बी ओके, 36 इंटू 7 करेंगे हम तो 288 हो जाएगा, राइट। तो हमें अगर हम 36 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा 288 के करीब हो जाएगा आई बिलीव। तो इससे थोड़ा सा छोटा दैट इज 7 में हमारा काम चल जाएगा। सो यू कैन सॉल्व इट एज बी 0.027 एज आवर आंसर। Sorry. Okay, so this is the coin question, so you can use the ratios method. So if there are 495 rupees in a bag in a denomination of 1 rupees, 50 paisa coin and 20 paisa coin, 25 paisa coin, and that are in ratio of 1:8:16, so how many 50 paisa coins are there in the bag? So basically you have 495 rupees total, उसमें से some are 1 रुपये का coin, some are half पैसे का coin and some are 50 पैसे का coin and some are in 25 पैसे का coin. So they are in ratio this and we need to find out कि 50 पैसे का coin कितना था, right? This is the basic question. So let's say okay, so we have 1 rupees coin, we have 50 पैसा coin. देखो 50 पैसे को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, and we have 25 पैसा coin, basically 1/4, क्योंकि 1/4 25 पैसा होता है। Now हम पे quantity क्या है? क्वांटिटी इज इन रेशियो ऑफ 1:8:16। अब देखो अब मैं निकालता हूँ प्राइस,
ठीक है, या कि हम पे कितना पैसा है, मनी का वैल्यू ऑफ मनी। देखो इफ़ वी हैव ओके, सो दिस इज द कॉइन्स, ये कॉइन्स है। सो इफ़ वी हैव 1 coin ऑफ 1 रुपीज़ बेसिकली मीन्स वी हैव 1 रुपी, राइट, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्राइस निकाल रहे हैं। तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्राइस और द वैल्यू ऑफ मनी। सो बेसिकली आपके पास अगर 50 पैसे के 8 कॉइन है तो बेसिकली मीन्स आपके पास 4 रुपये हैं, राइट। बेसिकली आपके पास 16 अगर 25 पैसे का कॉइन है, सो यू हैव 4 रुपीज़, राइट। सो हम पे टोटल वैल्यू क्या है 9, बट इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट द टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज़ दैट यू हैव इज 495. So value of 1 unit will be 5 into 45, again 45, basically means 55 is the value of 1 unit. So 1 unit is equal to 55 rupees. So we need to find out how many 50 paisa coins were there. So 50 paisa coins were 8 units. So 8 into 55 will be somewhere around 440. That is in option C. So ये वाला क्वेश्चन ईजी था, within 1.5 minute you can solve it. So given ratios are in one, okay, so let's say लिख लेते हैं एक बार, A, B and C and D भी है, चलो 2:3 है, B है, B:C है 5:2, C:D है 1:4। अब आई डोंट नो आप कैसे करते हैं। देखो इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो बाई ऑप्शन और एक आपका बेसिक मेथड जो आप कर सकते हैं, और एक थर्ड वाला जो ओल्ड मेथड है जिसको सब में इक्वल करना होता है, दैट इज़ द टफ वन। उसको नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा बता देता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है। चलो अब देखो शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अब आपको क्या करना है, देखो इधर कुछ भी नहीं लिखा ना, तो आप जो लास्ट डिजिट है ना उसको रिपीट कर दो, 3, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो इसको रिपीट कर दो, इससे पहले कुछ नहीं है तो इसको रिपीट कर दो, बेसिक है। इससे पहले अभी कुछ नहीं है तो इसको रिपीट कर दो आप, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, ये मत पूछना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 10, 15, 6, 4, 24, राइट। सो हमें बताने क्या क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A:B:C, दैट इज 10:15:6, दैट इज इन ऑप्शन सी। देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, जिसके बाद कुछ नहीं होता ना उसको रिपीट कर दो आप, और उससे पहले अगर कुछ नहीं है तो उसको रिपीट कर दो। देखो जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो इसको रिपीट कर दो बस, तो इसको आप इक्वल करके तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द रेशियो ऑल्सो। देखो ये तो हो ही गया मेथड। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ बाई ऑप्शन। देखो आपसे पूछा गया है A:B:C, राइट। आपको A:B का रेशियो पता है, दैट इज 2:3। ऑल्सो रेशियोज कभी चेंज नहीं होता है, ये मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, डिवीजन फैक्टर हो सकता है, बट चेंज नहीं होता रेशियो। बेसिकली मीन्स अगर 2:3 है तो ये 4:6 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे अभी रेशियो सेम ही है, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। देखो आपको निकालना क्या है, A:B, वो आपको पता है 2:3 है। देखो 2:3 है, इसमें 2:3 है, अगर आप काटोगे डिविजिबल ही नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये 2:3 है, हाँ, अगर आप इसको 5 से काटोगे 2:3 है। चलो आपका B:C क्या है, 5:2। आप चेक कर लो, ये 5:2 रेशो है क्या B और C में, बिकॉज ये B और C की वैल्यू ना 5:2 है, नहीं इसमें 5:2 है, हाँ। अगर आप इसको 3 से काटोगे ये 5:2 है। देखो बाई ऑप्शन यू कैन जस्ट डू इट इन विदिन 15 to 20 सेकेंड हार्डली, एंड बाई बेस शॉर्टकट मेथड यू कैन ऑल्सो डू इट विदिन अ मिनट। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ओके। So 2 pipes P and Q can fill a tank, okay, P and Q can fill out a tank in 20 hours and 25 hours, okay, respectively, okay. So while a third pipe R can empty, तो देखो ये empty है ना, खाली कर रहा है, तो इसके पहले आप माइनस लगा लो, तो आप गलती नहीं करोगे पेपर में, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हो, आप ऐड कर दोगे, माइनस नहीं करोगे याद से। तो R बेसिकली मीन्स वो empty कर रहा है, बाकी 2 पाइप भर रहे हैं, ये वाला पाइप लास्ट में होल है, ये खाली कर रहा है। So it takes 30 hours to empty the whole tank. So if all the pipes are open together for 10 hours and then R is closed, so बताओ कि कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा, राइट। तो पहले इनकी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, वो एलसीएम से आ जाता है। तो एलसीएम फाइंड करने का क्या है, सबसे बड़ा देखो उसका मल्टीपल काउंट करो जो कि इन दोनों के मल्टीपल में आना चाहिए, दैट इज 300।
तो इसमें आएगा ये 15 टाइम्स पे, राइट, इसमें आएगा ये 12 टाइम पे, और इसमें आएगा 10 टाइम्स पे। देखो अब मैं थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ द टोटल कैपेसिटी या फिर टोटल वर्क। ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बट इन द फॉर्म ऑफ पाइप एंड सिस्टम, कुछ नहीं है इसमें। दिस इज़ द एफिशिएंसी और वर्क पर डे और वाटर फिल्ड आउट पर आर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द एफिशिएंसी, बेसिकली मीन्स पी 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है, ठीक है। अब देखो आर खाली कर रहा है, तो इसके यहाँ माइनस लगा लो सो दैट आपको गलती ना करो। देखो अब उसने बोला है इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि तीनों पाइप ओपन करेंगे तो ये दोनों तो भरेंगे 15 यूनिट एंड 12 यूनिट, यानी 27 यूनिट, और ये 10 यूनिट खाली कर रहा होगा उसी टाइम पे, यानी कि -10 यूनिट। सो बेसिकली अगर ये तीनों पाइप एक ही टाइम पे चल रहे हैं, सो इन 1 आवर दे आर फिलिंग 17 यूनिट ऑफ वाटर, राइट। सो उन्होंने बोला है इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ओके, ये हमने कर दिया फॉर 10 आवर्स। सो इफ़ 1 घंटे में वो 17 यूनिट भर रहा है, तो 10 आवर्स में वो 170 यूनिट वाटर भर दिया होगा, राइट। तो 170 यूनिट वाटर ऑलरेडी टैंक में भर गया है। नाउ पाइप आर इज क्लोज्ड, अब उन्होंने इसको बंद कर दिया है, राइट। सो देखो अब देखो 300 इज द टोटल वाटर वी नीड टू फिल आउट इन द टैंक। देखो उसमें से 170 भर गया है, यानी कि 130 अभी बचा है। अब उन्होंने पाइप आर को क्लोज कर दिया, तो हमें बताना है इन व्हाट टाइम द टैंक कैन बी फिल्ड। देखो अब बेसिकली ये बंद हो गया, तो बेसिकली आपका पी एंड क्यू ही टैप जो है वाटर भर रहे हैं, दैट इज़ 27 यूनिट, प्लस पहले कितना टाइम लगा था आपको टोटल करने में, 10 घंटे ये चला था, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आगे हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, प्लस हम देख सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 27 है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, राइट। चलो सोल्व करते हैं अब। तो इसका आप एलसीएम लोगे 270 प्लस 130 डिवाइड बाई 27, दैट इज़ 400 डिवाइड बाई 27, विच इज़ इन ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप 2 मिनट लगा सकते हो, प्लस इसमें एरर होने का चांस है बिकॉज बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं, वो यहाँ माइनस ही नहीं करते, इन तीनों को ऐड करके 37 कर देते हैं। ओके, अ लाइन फ्रॉम सेंटर, ये तो इजी है यार। देखो एक सर्कल है, उसने बोला अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये होता है अपना, जो कि होता है 2πr। तो हमें बताना है कि अगर ये सर्कमफ्रेंस है तो ये बोला क्या जाता है, तो सबको पता ही है यार, ये रेडियस होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको पहले ढूंढने होते हैं पेपर में, जो कि 5-10 सेकंड में हो जाए या 30 to 40 सेकंड में हो जाए, राइट। प्लस ये डायमीटर होता है विच इज़ 2r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2πr, क्योंकि ये सर्कल है। एरिया होता है हमारा πr²। और अगर किसी डायामीटर से, एक और आइडेंटिटी बताए, तो किसी डायामीटर से आप ट्राइंगल खींचते हो ना, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन करा है ना कि वो डायामीटर से कोई भी ट्राइंगल बन रहा है सर्कल पे, तो उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। वो इसीलिए उन्होंने मेंशन करा होता है, बिकॉज ये 90 डिग्री आपको यूज़ करना होगा। और डायरेक्टली नहीं बताएंगे 90 डिग्री है, बट वो ये बताते कि हमने एक ट्राइंगल बनाया यूजिंग दैट डायमीटर टू द सर्कल, तो उसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ये डायमीटर से कहीं भी एंगल बना ले वो 90 डिग्री होगा बेसिकली, डायमीटर से, समझ रहे हो। चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट a इज 2⁻65 एंड b इज समथिंग समथिंग समथिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इतना बड़ा आ जाए ना, आपको बेसिकली उठा लो, आप 2:3 उठा लो और 2:4 उठा लो और कंपेयर कर लो, ठीक है। 2:3, 2:2 और 2:1, ये तो है। चलो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 16। ये क्या हो जाएगा, 8 + 4 + 2, राइट, और 2⁻0 विल बी 1। तो कितना हो गया, 6, 9, 15। तो देखो डिफरेंस एक है ना, यानी कि जो 2⁻4 है, यानी कि जो बड़ा वाला है ना, वो हमेशा बड़ा रहता है 1 नंबर से, ठीक है। तो यानी कि ये जो बड़ा वाला है ना, ये हमेशा बड़ा रहेगा कितने से, 1 नंबर से। तो देखते हैं, b इज़ लार्जर, नहीं, ये तो गलत है भाई। a एंड b आर इक्वल, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। b इज़ लार्जर, नहीं।
ए लार्जर है, वो भी कितने नंबर से, एक नंबर से। तो छोटा सा, इतना बड़ा है हमें सोल्व करना ही नहीं है, हमें छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लो। आप कभी भी लोगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 टिल 2 की पावर 0 कैलकुलेट कर लेना, ये हमेशा एक यूनिट ज़्यादा आएगा। तो हमें इतना बड़ा सोल्व करने का नीड ही नहीं है अगर हम ये छोटे से चेक कर सकते हैं। तो पेपर में ट्राई करा करो, टाइम छोटा करना है, और प्लस टारगेट टू फॉलो राउंड 3 स्ट्रेटेजी। राउंड 1 में ईजी क्वेश्चंस उठा लो जो कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जो ईजी है। राउंड 2 में थोड़े से जो 1-1.5 मिनट ले सकता है, और प्लस जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। एंड राउंड 3 में आप ट्राई करो, जो 5-7 क्वेश्चन बच गए हैं टफ वन, ट्राई टू डू देम। अगर नहीं हुआ कोई इशू नहीं, आप यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड बाई डूइंग राउंड 1 एंड राउंड 2 अराउंड 35 क्वेश्चन अगर प्लस रोहतक में कर दोगे आप, राइट। सो दैट्स इट। Okay, so this is the last question. The sum of third number and the 9th term of an AP. So basically means third number is a plus n minus 1d. A plus n minus 1d basically means n minus 1, 3 minus 1, that is 2d plus a plus n minus 1 9th यानी कि 8d is 8. So 2a plus 10d is 8. ये पता है ना कैसे लिखा है, a प्लस एन माइनस 1d होता है, उसमें थर्ड नंबर है, तो a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2d, ये हमने निकाल दिया। सो वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 11th टर्म। तो सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर d इज द डिफरेंस। ओके, सो हमें निकालना क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 11th टर्म। 11 माइनस 1 10d। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने मेंशन कर दिया 2a प्लस 11d इज 8, तो 11 बाई 2 इंटू 8 4th 44 एज आवर आंसर। सो कितना सिंपल था, सॉफ्ट, कोई इशू ही नहीं, आराम से सारा क्वेश्चन हो गया। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट, डू ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट in the comment section. Thank you and have a good day to you all.